Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine and today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 9 Physical Optics Comprehensive Questions. Now question number 1. What is meant by the dual nature of light? Discuss the history about the nature of light in detail. हमने बताना है कि dual nature of light से क्या मुराद है और हमने जो है वो history about the nature of light in detail discuss करना है. Now talking about dual nature of light. The dual nature of light refers to the idea that light exhibit both wave-like and particle-like behavior. Dual nature हमें क्या बताता है कि लाइट जो है वो both wave-like और particle-like behavior को exhibit करता है. ये जो कॉन्सेप्ट है डुअल नेचर ऑफ लाइट का ये रेफर्ड है एज वेव पार्टिकल डुअलिटी और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. It suggests that depending on the experimental conditions, light can behave as a wave or as a stream of particle. ये इसके अकॉर्डिंग जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है वो जो है ये हमें बताता है कि लाइट को हम एज अ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या है. Historical background. The exploration of the nature of light has a rich history spanning centuries. The dual nature of light emerged as a result of various experiments and theories proposed by scientists. Here is a detailed overview of the history. जो हमारे पास ये exploration आई about the nature of light, इसकी बहुत rich history है जो कि बहुत centuries फैली हुई है. जो हमारे पास डुअल नेचर ऑफ लाइट है ये इमर्ज हुई एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद और जो थ्योरीज हैं जो साइंटिस्ट ने प्रपोज की उसके बाद जो है डुअल नेचर ऑफ लाइट ने जन्म लिया. और जो ओवरव्यू है हिस्ट्री का वो क्या है वेव थ्योरी ऑफ लाइट को सबसे पहले हम देखते हैं. In the 17th century, the Dutch scientist Christian Huygens proposed a wave theory of light. 17th सेंचुरी में एक डच साइंटिस्ट है क्रिस्टियन हाइजिन उसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में एक थ्योरी प्रपोज की. He suggested that light was a wave-like phenomena and he introduced the concept of wavefront. उसने क्या कहा कि लाइट जो है वो एक wave-like phenomena है और उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया वेव फ्रंट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया. In the 19th century, Augustin Jean Fresnel and Thomas Young provided substantial evidence in the favor of the wave theory of light. 19th century में उन्होंने हाइजेंस के ऊपर जो है वो उसके काम को बढ़ाया और उन्होंने ये एविडेंस प्रोवाइड किया कि जो लाइट है वो क्या है वेव नेचर रखती है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट which demonstrated interference pattern was particularly important in supporting of the wave nature of light. जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थे वो हमारे पास एक जोरदार या इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग एविडेंस था जिससे यंग्स ने जो है वो ये प्रोवाइड किया ये एविडेंस दिया ये एविडेंस अपीयर किया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कि वेव जो है वो लाइट जो है वो वेव नेचर है. Now, particle theory of light. In the late 19th century, Sir Isaac Newton advanced for the particle theory of light, positioning that light was composed of teeny particles or corpuscles. 17th century में Sir Isaac Newton ने एक theory advocate किया for the particle theory of light और उन्होंने ये पोस्ट किया कि लाइट जो है वो कंपोज है टीनी पार्टिकल्स को जिनको कर्पस्कल्स का नाम दिया गया. Newton's corpuscular theory explained the rectilinear propagation of light but couldn't account for phenomena like interference and diffraction. जो न्यूटन्स का corpuscular theory थी उसने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है कैसे रेक्टिलिनियरली प्रोपगेट करती है और लेकिन उसने ये नहीं अकाउंट किया ये नहीं बताया कि जो हमारे पास फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का उसका क्या प्रोसेस होता है. वेव पार्टिकल डुअलिटी इमर्जेस. जो वेव पार्टिकल डुअलिटी थी वो फिर इमर्ज हुई. इन द अर्ली 19th century the wave and particle theories appeared to be in conflict. 19th century में जो वेव पार्टिकल है जो वेव थ्योरी है और जो पार्टिकल की थ्योरी है वो दोनों एक दूसरे से तजाद में आ गई एक दूसरे के अपोजिट कॉन्फ्लिक्ट में खड़ी हो गई.
However, the wave theory had more experimental support. अगरचे wave theory में जो था वो experimental support बहुत ज़्यादा थी. In the early 20th century, Albert Einstein made significant contribution by proposing that light could be understood as a discrete packet of energy called photons. 20th century में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट है वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में है. उसने वेव पैकेट्स को नाम दिया फोटोन का. दिस इफेक्टिवली रिकनसाइल्ड द वेव पार्टिकल डुअलिटी. और इसने जो है वो फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी को रिकनसाइल किया, यानी कि उसको पुश किया. Max Planck's work on a black body radiation and the photoelectric effects experiment performed by Albert Einstein and Robert Millikan provided strong evidence for the particle-like behavior of light. Max Planck ने black body के ऊपर वर्क किया और photoelectric effect experiments किए जो कि आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और रॉबर्ट मिलिकन ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया फॉर पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट. यानी कि मैक्स प्लैंक ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और रॉबर्ट मिलिकन ने ये प्रपोज किया कि पार्टिकल जो है वो लाइट जो है वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करती है. Louis D. Broglie introduced the concept of particles like electrons could also exhibit wave-like properties known as wave particle duality. अच्छा, फिर डी ब्रॉगली ने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स में होता है, ठीक है, और उसने ये कहा कि जो लाइट है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को एग्जिबिट करती है. नाउ modern quantum mechanics. Werner Heisenberg uncertainty principle and Erwin Schrödinger wave equation both formulated in 1920. जो Heisenberg uncertainty principle है और जो Schrödinger wave equation है दोनों 1920s में formulate हुई और इन्होंने establish किया framework of quantum mechanics जिन्होंने treat किया particles और waves को as dual aspect of the same phenomena. The Schrödinger equation describes the behavior of particle as wave function. Schrödinger equation ने क्या किया, जो हमारे पास behavior है पार्टिकल का उसको wave function के तौर पे जो है वो describe किया, and it can be used to predict the probability distribution of particles in various states. और इससे जो हम ये predict कर सकते हैं कि हमारे पास probability distribution क्या है particles की in different states. Now coming to question number 2. Explain the diffraction of X-rays by crystal and derive an expression for Bragg's law to find the wavelength of light used. Wave motion. The diffraction of X-rays by crystals in phenomena in which X-rays are scattered by the atoms within a crystal lattice. This process is governed by Bragg's law. जो diffraction है X-rays का by crystal ये फिनोमेना है, यहाँ इसमें क्या होता है, जो एक्स रेज हैं वो स्कैटर्ड होती हैं बाय एटम्स विद इन द क्रिस्टल लैटिस, और इसको गवर्न किया किसने, ब्रैग्स लॉ ने, which relates the angle at which X-rays are diffracted to the wavelength of the incident X-ray and the spacing between the crystal lattice planes. इसने रिलेट किया उस एंगल के ऊपर जहाँ पे एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो रही थी उसको, और जो हमारे पास वेव लेंथ है इंसिडेंट एक्सरेज की उसको, और जो स्पेसिंग है बिटवीन द क्रिस्टल लेटिस प्लेन्स, इन तीनों को आपस में रिलेट किया. हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल एंड द डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ. Diffraction of X-rays by crystals. When X-rays which have a very short wavelength interact with the regular array of atoms in a crystal lattice, they are scattered by the individual atoms. जो X-rays हैं जिनकी wavelength बहुत short है, जब वो interact करती हैं with regular array of atoms जो कि crystal lattice में present हैं, तो तब क्या होता है, scattering होती है by individual atoms. X-rays that are scattered by different atoms within the crystal interfere constructively or destructively depending on the path length difference between them. जो X-rays atoms की मौजूदगी की वजह से scattered हुई है, जब वो atoms hit हुई है तो क्या हुई है, वहाँ पे scattering का phenomena हुआ है within the crystal interfere. अब यहाँ पे क्या होगा, या तो interfere constructively होगी या interference destructively होगी. ये depend करेगा कि हमारे पास path length है उसका difference जो है वो कितना है. If the path length difference is an integral multiple of X-rays wavelength,
अगर हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है पाथ डिफरेंस का तो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी लीडिंग टू द ब्राइट स्पॉट्स। और अगर हमारे पास जो पाथ लेंथ डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ है और अदर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है तो तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी लीडिंग टू द डार्क स्पॉट। जब हमारे पास ब्राइट स्पॉट्स आएंगे तो मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क स्पॉट्स आएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। The crystal acts like a three-dimensional diffraction gradient producing a characteristic pattern of bright and dark spots. जो क्रिस्टल है वो एक्ट करेगा लाइक अ थ्री डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसेक्टिवली ब्राइट और डार्क स्पॉट्स आते जाएंगे। Now question number 2. Explain the diffraction of X-rays by crystal and derive an expression for Bragg's law to find the wavelength of light hues. हमने क्या करना है, diffraction of X-rays जो है हमारे पास है by crystal उसको explain करना है। Okay, Bragg's law. Bragg's law is the fundamental equation that relates the angle of diffraction, the wavelength of X-rays and the spacing between the crystal lattice planes. Bragg's law क्या करता है, ये relate करता है angle of diffraction को, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज को और जो स्पेसिंग है बिटवीन द क्रिस्टल लेटिस प्लेन्स, इन तीनों को रिलेट करता है। जिसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा, where n is the integer representing the order of diffraction maximum, n is equal to 1 for first order and n is equal to 2 for the second order, and जैसे जैसे हम ऑर्डर को इंक्रीज करते जाएंगे तो n की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। लैम्डा क्या जी, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज, d है जी स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट क्रिस्टल लेटिस प्लेन्स, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा क्या है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। नाउ जो हमारे पास डेरिवेशन है ब्रैग्स लॉ की, द डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन एक्स-रेज स्कैटर्ड बाय डिफरेंट एटॉमिक प्लेन्स विद इन द क्रिस्टल। जो हमारे पास डेरिवेशन है ब्रैग्स लॉ की वो बेस्ड करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसके दरमियान, बिटवीन एक्स-रेज स्कैटर्ड बाय डिफरेंट एटॉमिक प्लेन्स विद इन द क्रिस्टल्स। जो हमारे पास सिंप्लीफाइड डेरिवेशन है वो क्या है, हम कंसिडर करते हैं टू एडजेसेंट क्रिस्टल प्लेन्स हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट रखेंगे एट डिस्टेंस जी। द एक्स-रेज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल आर स्कैटर्ड बाय द एटम्स इन दीज प्लेन्स, जो एक्स-रे इंसिडेंट होगी ऑन दिस क्रिस्टल लेटिस वो स्कैटर्ड होंगी बाय द प्रेजेंस ऑफ एटम्स इन बोथ प्लेन्स। To achieve constructive interference, the path length difference between these two scattered rays must be equal to the इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एक्स-रे वेवलेंथ। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें चाहिए तो जो पाथ लेंथ डिफरेंस है बिटवीन द टू स्कैटर्ड रेज वो इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स-रे वेवलेंथ के। देयरफॉर द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट, 2d sin theta is equivalent to n lambda. The factor of 2 accounts for the fact that X-rays travel to the crystal plane and back. जो हमारे पास 2 आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि हम जो है ये डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट करेंगे जब X-rays क्रिस्टल प्लेन के ऊपर गई, हिट हुई वहां से और वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई। Theta is the angle between the incident X-rays beam and diffracted X-ray beam, which is why sine of theta appears in the equation. By adjusting the angle theta and knowing the lattice spacing d, one can use Bragg's law to determine the wavelength of the incident X-ray. अगर हमारे पास थीटा हम एडजस्ट कर लें और हमारे जो लेटेस्ट स्पेसिंग है d पता है तो हम ब्रैग्स लॉ को यूज करते हुए हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं ऑफ द इंसिडेंट एक्स-रे। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। और जो ब्रैग्स लॉ ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल का जो है उसको डिटरमिन कर सकें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन of interference fringes by Young's double slit method and get an expression for the fringe space. हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बतानी है जहां से हम प्रोडक्शन करवा सके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की बाय यंग्स डबल स्लिट मेथड और हमने एक्सप्रेशन को लिखना है फॉर द फ्रिंज स्पेस। Young's double slit experiment. Young's double slit experiment is a classic setup used to demonstrate the interference of light waves. Young double slit experiment एक important concept है और इस classic setup है जहां से हम ये demonstration ले सकते हैं about the interference of light waves. In this experiment,
two closely spaced slits are illuminated with a monochromatic light source and the resulting interference pattern is observed on the screen. इस एक्सपेरिमेंट के क्या होता है, दो क्लोजली स्पेस स्लिट्स हम लेते हैं और उनका हम इल्यूमिनेट करते हैं विद मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, ठीक है. और जो हमारे पास रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न रहेगा फिर हम उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. The setup for Young's double slit experiment typically consists of the following components. सबसे पहले हमें चाहिए light source. You need a monochromatic light source such as laser to ensure that the incoming light has a single wavelength. Monochromatic मतलब single wavelength. Single wavelength वाली हमें light चाहिए, ठीक है. Next हमें चाहिए double slit. A barrier with two very narrow slits is placed in the path of light. जिसके दो narrow spacing हो उसको हम कहते हैं double slit. वो हमें चाहिए. और ये जो दोनों स्लेट्स हैं ये एक दूसरे से इतना क्लोज होंगी कि हमारे पास जो है वो अलाइनमेंट हो जाए इस तरीके से जो लाइट है वो पास करे थ्रू द बोथ स्लेट्स एंड ट्रेवल टू द स्क्रीन. नेक्स्ट हमें चाहिए स्क्रीन जहां पे हम जो है अपने आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे. स्क्रीन इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द डबल स्लेट. दिस इज वेयर द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व. और हम स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट हमें चाहिए जी एडजस्टेबल स्लेट विड्थ एंड सेपरेशन. Some setups allow you to adjust the width of the slits and the separation between them. हमें चाहिए adjustable slit width and separation. उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे स्लेट की width है या जो separation between the slits उसको हम adjust करेंगे. These adjustment can affect the characteristics of the interference pattern. और इस adjustment से क्या होगा, हमारे पास जो interference pattern है उसकी characteristics में भी change हम observe करेंगे. Okay, derivation of fringe spacing D. The fringe spacing denoted by D is the distance between adjacent bright or dark fringe in the interference pattern. To derive an expression for D, you can use the following formula. जब हमने fringe spacing जिसको हम D से represent करते हैं उसकी derivation करनी है तो हमें formula require है D is equivalent to D lambda over L. जो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल d है वो है फ्रिंज स्पेसिंग, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज कर रहे हैं, L है जी डिस्टेंस फ्रॉम द डबल स्लिट टू द स्क्रीन, और D क्या है जी डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज एंड द nth ऑर्डर मैक्सिमम और मिनिमम. जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम है उससे nth ऑर्डर मैक्सिमम या मिनिमम तक का जो डिस्टेंस है वो है D, कैपिटल D. Now to understand this formula, consider the following points. When light passes through the double slit, it creates two coherent sources of light waves. जब लाइट हमारे पास करेगी थ्रू डबल स्लिट वहां पे हमारे पास क्या होगा, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स प्रोड्यूस होंगी या क्रिएट होंगे. दीज वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर ऑन द स्क्रीन. और ये दोनों वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी ऑन स्क्रीन. At certain angles, constructive interference occurs leading to bright fringe, while at other angles, destructive interference occurs resulting in dark fringe. और कुछ एंगल्स के ऊपर क्या होगा, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही होगी, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी, और कुछ एंगल्स के ऊपर हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही होगी, और जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी तो हमारे पास क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी. जो हमारे पास एक्सप्रेशन है स्मॉल d का वो डिराइव्ड किया गया बाय कंस्ट्रक्टिंग ज्योमेट्री ऑफ द सेटअप एंड द पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स दैट इंटरफेयर ऑन द स्क्रीन. हमने कंसीडर किया ज्योमेट्री ऑफ सेटअप्स जिसमें हमारे पास पाथ लेंथ डिफरेंस आता है बिटवीन द वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स दैट इंटरफेयर ऑन द स्क्रीन. जो हम वेव लेंथ यूज कर रहे हैं उनके जो पाथ लेंथ उसका डिफरेंस जो इंटरफेयर करेंगे स्क्रीन के ऊपर. अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि n लैम्डा का हमारे पास मल्टीपल होगा, वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंजेस के लिए द पाथ लेंथ डिफरेंस d इज इक्वल टू हाफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ n. यहाँ पे क्या था, n लैम्डा था, तो वहां पे हमारे पास n क्या था, 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे हमारे पास क्या n प्लस 0.5 लैम्डा मीन्स कि हमारे पास जो है वो हाफ इंटीजर मल्टीपल यूज होंगे. The fringe spacing small d represent the angular distance between adjacent bright or dark fringe and is proportional to the wavelength of light and distance L and D. जो हमारे पास fringe spacing है वो represent करती है angular distance किसके दरमियान, between adjacent bright और dark fringes.
और ये हमारे पास स्मॉल डी प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के, और जो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं एल और डी, इन तमाम के जो है वो प्रोपोर्शनल होगा. By measuring d and knowing the other parameters, you can determine the wavelength of the light source. जब हम स्मॉल डी को मेजर कर लें और हमारे पास तमाम पैरामीटर्स नोन हों, तो हम जो है इजीली वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स को मेजर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. State and explain Huygens principle. What is the difference between spherical and plane wave fronts? Huygens principle. It was formulated by Dutch scientist Christian Huygens in the 17th century. Huygens principle explains how waves propagate and interact. It can be stated as follows. जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ये फॉर्मुलेट किया गया बाय डच साइंटिस्ट जिसका नाम था क्रिश्चियन हाइजेंस, और ये कब प्रपोज किया गया, कब फॉर्मुलेट किया गया, इन 17th सेंचुरी. और हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास वेव जो है कैसे प्रोपोगेट करते हैं और इंटरेक्शन उनका कैसे होता है. इट कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. Every point on a wavefront can be considered as a source of secondary wavelength that spread out in all directions with the same speed as the original wave. वेव फ्रंट में तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि स्प्रेड आउट होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, और उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी जिस स्पीड से हमारे पास ओरिजिनल वेव आ रही है. द एनवेलप ऑफ ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी लेटर टाइम रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट. और जो एनवेलप है फॉर ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी लेटर टाइम वो हमें रिप्रेजेंट करेगा न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट. In simpler terms, Huygens' principle suggests that a wavefront such as a wavefront of light can be thought of as made up of countless tiny secondary wavelets. Simpler terms में ये कह सकते हैं कि Huygens' principle हमें ये सजेस्ट करता है कि जो हमारे पास wavefront है जैसा कि हो गया wavefront of light, वो हम ये थिंक करते हैं, थॉट करते हैं कि वो बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है, काउंटलेस tiny secondary wavelets. These secondary wavelets are generated by points on the original wavefront. और ये secondary wavelets कहाँ पे generate होते हैं, points on the original wavefront, और ये propagate करते हैं outward from these points. और जो हमारे पास new wavefront होंगे at the later time वो result होगा जहाँ भी हमारे पास secondary wavelets overlap कर रहे होंगे, और वहां पे हमारे पास क्या होगा, इन्वेलप क्रिएट हो रहा होगा जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा द न्यू या अपडेटेड पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट्स. Spherical wavefronts. A spherical wavefront occurs when a wave originates from point source such as light source or a sound emitter. जो spherical wavefronts है वो occur होते हैं जब हमारे पास जो है वो wave originate हो from a point source, जैसा कि अगर हमारे पास light source है या कोई sound source है जहाँ से हमारे पास wave originate हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, spherical wavefronts. In spherical wavefront, the secondary wavelets generated at each point on wavefront spread out in 3 dimensions, forming expanding spheres. जो spherical wavefronts होगा वहाँ पे हमारे पास जो secondary wavelets generate हो रहे होंगे at every point of wavefront, वो क्या होंगे, 3 डायरेक्शन या 3 डायमेंशंस के ऊपर स्प्रेड आउट होंगे, और वहाँ पे हमारे पास जो स्फीयर फॉर्म होते जाएंगे. The amplitude of the wave decreases as the spherical wavefront expands. और जो हमारे पास amplitude है wave का वो decrease होता जाएगा जैसे जैसे हमारे पास spherical wavefronts expand होते जाएंगे, resulting in a decrease in the intensity of the wave as you move further from the source. और जैसे जैसे हम source से move होते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, जो sound की intensity या light की intensity है वो क्या है, कम से कम होती जाएगी. Spherical wavefronts are characteristic of point source and represent wave radiating equally in all directions from the source. जो spherical wavefront है वो characteristic है point source की, और ये represent करता है उन waves को जो कि radiate कर रही हो equally in all directions from the source, जो कि उन waves को produce कर रही है. Now, plane wavefront. A plane wavefront occurs when the light या wave originate from a source that is effectively at an infinite distance from the observation point. ऐसे पॉइंट जो कि इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर और वहां से हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही हो, तो हमारे पास क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, और हमारे पास ये वाला वेव फ्रंट क्या होगा, फ्लैट और पैरेलल होगा.
In a plane wavefront, the secondary wavelets generated at each point on the wavefront propagate parallel to each other. और जो हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट है, जो हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट, वो एक दूसरे के पैरेलल प्रोपगेट करेंगे. The amplitude and intensity of the wave remain constant as you move through a plane wavefront because all points on the wavefront are at the same distance from the source. और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी है वेव का, वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा चाहे हम उस सोर्स से कितना भी दूर जाते जाएं. और ये क्यों होगा? क्योंकि तमाम पॉइंट्स जो हैं जो कि वेवफ्रंट के ऊपर प्रेजेंट है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द सोर्स. Plane wavefront are characteristic of waves that have been sufficiently collimated, such as light from a distant star or output of the laser beam. जो हमारे पास जिस स्टार से लाइट आ रही है या आउटपुट लेजर बीम से जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? प्लेन वेवफ्रंट की एग्जांपल है. Now coming to question number 5. Explain the interference effect produced by thin film. Explain the interference effect produced by thin film. Interference effect produced by thin film. जो हमारे पास इंटरफेरेंस इफेक्ट है जो कि थिन फिल्म से प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिजल्ट है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स का जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है फ्रॉम द टू सरफेसेस ऑफ द फिल्म. This phenomena is commonly observed in various optical devices and everyday life. और जो हमारे पास इंटरफेरेंस है ये हम एवरीडे लाइफ और ऑप्टिकल डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वेरियस ऑप्टिकल डिवाइसेस, वहाँ पे हम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसा कि अगर हम सोप की बात करें तो हमारे पास क्या है, सोप बबल्स के ऊपर इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व हो रहा होता है. फिल्म्स ऑफ वाटर अगर हम बात करें, ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स ऑन आई ग्लासेस, यहाँ पे तमाम जगहों के ऊपर हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व हो रहा होता है. द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. और जो हमारे पास इंटरफेरेंस है थिन फिल्म्स की, वो एक्सप्लेन की जाती है by the principle of superposition, where two or more waves combine to create regions of constructive and destructive interference. और इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा वेव्स जो है कंबाइन करेंगी और हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रीजन्स जनरेट होंगे. Here's an explanation of the interference effect in a thin film. सबसे पहले अगर हम देखें रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस, when light typically from monochromatic source like a laser enters a thin film, a portion of it is reflected at the first surface of the film, creating a first reflective wave. जब हमारे पास लाइट एंटर होगी फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, तो हमारे पास क्या है, जो पोर्शन है उस लाइट का रिफ्लेक्ट करेगा एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द फिल्म, और वहां पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो ऑब्जर्व्ड होगी. दिस रिफ्लेक्शन अकर बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बिटवीन द फिल्म एंड सराउंडिंग मीडियम. और ये किस वजह से होगी रिफ्लेक्शन? बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उन फिल्म के दरमियान और जो हमारे पास सराउंडिंग मीडियम्स है उनके दरमियान. ट्रांसमिशन थ्रू द फिल्म. The rest of incident light penetrates the film and travels through it. जो हमारे पास जो बाकी लाइट बची होगी हमारे पास, वो पेनिट्रेट करेगी थ्रू द फिल्म और वहां से जो है वो ट्रेवल कर जाएगी. इनसाइड द फिल्म द लाइट वेव में अंडरगो अ फेज शिफ्ट ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जो लाइट होगी वो अंडरगो होगी फेज शिफ्ट, और वो फेज शिफ्ट किस वजह से आएगा, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सरफेस. आफ्टर ट्रेवर्सिंग द फिल्म, जब वो फिल्म से ट्रेवर्स कर जाएगी लाइट, तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो रीच कर जाएगी एट द सेकंड सरफेस ऑफ द फिल्म, और वहां पे क्या होगा, जो पोर्शन होगा कुछ लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो हमारे पास सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव प्रोड्यूस्ड होगी. द फेज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव वेव डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म. और जो हमारे पास फेज है इस रिफ्लेक्टिव वेव्स का, वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म. नाउ सुपरपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. The two reflective wave, one from the first surface and one from the second surface, then superpose when they reach the same point in space. और जो हमारे पास सुपरपोजिशन होगी रिफ्लेक्टेड वेव की, वो किस तरह होगी, जो हमारे पास फर्स्ट सरफेस से जो लाइट आ रही है वो और जो सेकंड सरफेस से लाइट आ रही है वो एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगी और फिर भी हमारे पास सुपरपोजिशन का
प्रिंसिपल ऑब्जर्व होगा। Interference effect produced by the film. Here's an explanation of the interference effect in a thin film. Interference. The superposition of two reflected waves can result in region of constructive and destructive interference. जो superposition है दो waves की, या तो वो हमारे पास constructive interference बनाएगी या हमारे पास वो destructive interference बनाएगी. These interference effect depends on the phase difference between the waves at the point of superposition. और जो हमारे पास constructive या destructive interference बनेगी वो depend करेगा कि हमारे पास जो phase difference है between the two waves at the point of superposition वो क्या है. Now, constructive interference. If the path length difference delta d is equal to an integer multiple of wavelength of light, delta d is equivalent to m lambda, where m is an integer, the waves are in phase. जब हमारे पास दोनों waves in phase होंगी तो हमारे पास क्या होगा, constructive interference बनेगी. और जब हमारे पास constructive interference बनेगी तो हमारे पास जो spot हैं वो कौन से appear होंगे, bright spot appear होंगे, और जो उनका color होगा refracted light या transmitted light का होगा. नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब हमारे पास जो पाथ लेंथ डिफरेंस है वो इक्वल टू हो हाफ इंटीजर मल्टीपल के ऑफ द वेवलेंथ डेल्टा डी इज इक्वलेंट टू m प्लस 0.5 लैम्डा, तो तब हमारे पास क्या होंगी, वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी. और जब हमारे पास वेव आउट ऑफ फेज होंगी तो हमारे पास इंटरफेरेंस कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास स्पॉट्स कौन से आएंगे, डार्क स्पॉट्स आएंगे, और हमारा जो कलर शिफ्ट है वो भी ऑब्जर्व होगा इन रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट में. The specific colors observed in thin film interference depends on the thickness of the film, angle of incidence and the wavelength of light. जो हमारे पास specific color जो हमें observed हुई in thin film interference वो depend करेंगे कि हमारे पास thickness of the film कितनी है, और जो angle of incidence है वो क्या है, और जो wavelength light की वो क्या है. तो हमारे पास different color correspond करेंगे to the different values of m in the interference conditions. Now question number 6. What is the principle of interference of light? Discuss the necessary condition for the interference of light. Interference of light का principle क्या, और हमने जो है वो necessary condition discuss करनी है for the interference of light. Interference of light. The principle of interference of light is a fundamental concept in optics describing the interaction of two or more light waves that combine to produce a resultant wave with variations in intensity due to the superposition of these waves. जो हमारे पास principle of interference है लाइट के लिए वो fundamental concept है ऑप्टिक्स के अंदर, और ये हमें डिस्क्राइब करेगा कि दो या दो से ज़्यादा जो लाइट्स हैं वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और हमारे पास जो है ये मिलके कैसे जब रिजल्टेंट वेव को प्रोड्यूस करती हैं विद द वेरिएशन इन इंटेंसिटी. कहीं पे हमारे पास ब्राइट आएगा, कहीं पे डार्क रीजन्स आएंगे ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स. Now interference is a consequence of the wave nature of light and can be understood through the following key principle. जो इंटरफेरेंस है वो कंसिक्वेंस है कि हमारे पास जो लाइट का नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है, और ये अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं थ्रू द फॉलोइंग की प्रिंसिपल्स. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. When two or more coherent having a constant phase relationship light waves overlap in space and time, their electric field vectors combine linearly. जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी तो तब हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो लीनियरली कंबाइन हो जाएंगे. दिस मीन्स दैट एट एनी पॉइंट इन स्पेस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स. किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पेस में जो प्रेजेंट हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो क्या होगा, तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट के ऊपर आ रही होंगी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स उनका अलजेब्रिक सम होगा. Formation of interference pattern. As light waves superpose, regions of constructive and destructive interference are created. जब हमारे पास light waves superpose होंगी तो regions of constructive और destructive interference create होंगी. Constructive interference occurs when the waves are in phase, और destructive कब आएंगी, जब हमारे पास waves out of phase होंगी. और कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास इंटेंसिटी कम हो जाएगी. नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कोहेरेंस. The light source must be coherent, which means that they have a constant phase relationship. जो light sources हैं वो coherent होनी चाहिए, जो उनका phase relationship है वो constant होना चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो frequencies हैं source की वो सेम होनी चाहिए, और जो phase difference है between them वो भी constant रहना चाहिए जैसे जैसे टाइम पास होगा.
नेक्स्ट हमारे पास है जी मोनोक्रोमेटिक लाइट. इंटरफेरेंस इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व विद मोनोक्रोमेटिक लाइट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. जो इंटरफेरेंस है वो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व होती है इन मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि कंसिस्ट होती है सिंगल वेवलेंथ के ऊपर. और मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज जैसा कि लेजर हो गए वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट विद अ सिंगल वेल डिफाइंड वेवलेंथ, मेकिंग इट इजियर टू क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न. मोनोक्रोमेटिक मीन्स कि ऐसी लाइट जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो. नेक्स्ट है जी हमारे पास narrow slit width or thin slit separation. To observe interference pattern from a single source, you typically need a narrow slit or thin separation between the sources. अगर हमने interference के phenomena को observe करना है from the single source, तो हमें क्या चाहिए, हमें narrow slit चाहिए और thin separation चाहिए between the sources. ये इंश्योर करेगा कि हमारे पास जो है waves हैं वो emit हो रही हैं from different part of the sources और उनकी frequency क्या है, same है और वो interfere करेंगी constructively या destructively. नेक्स्ट है जी पैरेलल और नियरली पैरेलल वेव्स. हमें क्या चाहिए, पैरेलल या पैरेलल के आसपास हमें वेव्स रिक्वायर है. द वेव्स शुड बी नियरली पैरेलल व्हेन दे ओवरलैप, व्हिच टिपिकली रिक्वायर द इंटरफेरेंस बीइंग टू बी इंसिडेंट एट अ स्मॉल एंगल ऑन द सेम रीजन और टारगेट. Which ensures that the path difference between the wave remains constant over the region of overlap. हमारे पास क्या है, path difference constant रहना चाहिए over the region जहाँ पे हमारे पास जो waves हैं वो overlap कर रही हैं. Next is homogeneous medium. The medium through which the light travels should be homogeneous, meaning that its optical properties do not vary significantly in the region of interference. जो उसका refractive index है या जो दूसरी properties हैं optical properties वो constant रहनी चाहिए जहाँ पे हमारे पास interference वाला region हो. Next है जी interfering at the same location. The wave must overlap or interfere at the same location in space and at the same time. जो हमारे पास interference है वो same point in space और same time के ऊपर होनी चाहिए और यह हमारे पास achieve होगी using beam splitters, mirror और other optical elements to bring the waves together. Now question number 7. What is diffraction grating? How can the wavelength of the beam ऑफ लाइट बी मेजर्ड विद इट. हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है वो हमने बताना है और हम कैसे जो वेव लेंथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इससे मेजर कर सकते हैं. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. A diffraction grating is an optical device that consists of a large number of closely spaced, equally sized slits or lines. When a beam of light passes through or reflects off diffraction grating, it undergoes a phenomenon known as diffraction, which results in the light being dispersed into its component colors, similar to what a prism does, but with much greater precision and control. जो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि कंसीडर होती है एट नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इक्वली साइज स्लिट्स और लाइंस. और जब हमारे पास लाइट इनसे पास करेगी तो हमारे पास क्या होगा, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट ऑफ होगी थ्रू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना कर होगा और हमारे पास क्या होगा, डिस्पर्जन होगी लाइट्स की इनटू इट्स कंपोनेंट कलर. Diffraction grating are commonly used to separate and analyze the different wavelengths present in a beam of light. जो diffraction gratings है वो commonly use होती हैं to separate and analyze the different wavelengths present in a beam of light. They are crucial for various scientific and technological applications, including spectrometry and measurement of wavelength of light. Here's how diffraction grating can be used to measure the wavelength of beam of light. अगर हम इंसिडेंट लाइट को देखें तो अ बीम ऑफ लाइट विद मल्टीपल वेवलेंथ इज डायरेक्टेड ऑन टू द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. जो बीम है लाइट की जो कि कंसिस्ट कर रही है ऑफ सेवरल वेवलेंथ वो डायरेक्ट होगी ऑन टू द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रैक्शन. एज द लाइट passes through the grating, it encounters the closely spaced slits or lines. Each of these slits act as a secondary source of light, and light from each of these sources undergoes diffraction. This diffraction causes the incoming beam to split into multiple diffracted orders. The specific angles and intensities of these orders depends on the wavelength of the light and the spacing of the grating lines. Now, diffraction grating, dispersion. The different wavelengths of light are dispersed at different angle. जो different wavelengths की light है वो dispersed होंगी at different angle. Shorter wavelength are diffracted more than longer wavelength. और जो हमारे पास resulting pattern आएगा वो consist होगा of bright spots or diffraction maxima for each wavelength.
Observation: an observer can measure the angles at which the different colors are dispersed and determine their position. हम क्या है वो एंगल मेजर कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास डिस्पर्जन हुई है ऑफ डिफरेंट कलर्स या वेवलेंथ, और हम उनकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं. दिस कैन बी डन यूजिंग अ स्क्रीन और डिटेक्टर प्लेस एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेटिंग. और हम ये किस तरह कर सकते हैं कि एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस हम डिटेक्टर को प्लेस कर दें. Grating equation. The grating equation is used to relate the angle of diffraction, the wavelength lambda, and grating parameters. The grating equation is typically given as n lambda is equal to d sine of theta. N is diffraction order. Lambda is the wavelength of the light you want. और d क्या है? Spacing between the grating lines. Theta is the angle diffraction of for the specific order. Angle of diffraction के लिए हम theta को लेंगे. Now wavelength calculation. By measuring the angle theta for particular diffraction order and knowing the grating parameters, you can calculate the wavelength of the light using the grating equation. Question number 8. Describe the construction and working of Michelson interferometer. How one can determine the wavelength of light used by this instrument. हमने Michelson interferometer का बताना है, उसकी वर्किंग क्या है, और हमने बताना है कि कैसे जो है हम उससे जो है wavelength of light को मेजर कर सकते हैं. Now Michelson interferometer. Michelson interferometer is a crucial optical instrument used for measuring the wavelength of light and for various other applications such as determining the refractive index of medium and measuring small distances. The interferometer is based on the principle of interference, which involves the superposition of two or more coherent light waves to create an interference pattern. ठीक है जी. जो मिकलसन इंटरफेरोमीटर है उसको हम यूज करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को निकालने के लिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर हमने निकालना है, और जो हमने स्मॉल डिस्टेंस अगर हमने उसको कैलकुलेट करना है तो मिकलसन इंटरफेरोमीटर को हम यूज करते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या है जिसकी? मिकलसन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट. सबसे पहला है बीम स्प्लिटर. A half silvered glass plate or beam splitter is used to divide the incoming light beam into two separate beams. Typically, this beam splitter reflects about 50% of the incident light and transmit the other 50%. The reflected and transmitted beams are at right angles to each other. Beam splitter क्या करता है? जो हमारी लाइट है उसको स्प्लिट कर देता है, और जो हमारे पास 50% है इंसिडेंट लाइट वो रहेगी, और 50% जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम्स हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे के 90 डिग्रीज के ऊपर होंगी. Next है जी two mirrors. Each of the two beams is directed to separate mirrors. These mirrors are placed at equal distances from the beam splitter and are typically adjustable. जो मिरर होगा हमारा वो एडजस्टेबल होगा, और जो है ये मिरर इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर होंगे फ्रॉम द बीम स्प्लिटर. नेक्स्ट है जी पाथ लेंथ कंपेंसेटर. To create variable path difference between the two beams, a path length compensator is introduced in one of the arms. This compensator can be in the form of glass plate or other optical elements that can be moved to change the optical path length. जो path length compensator है वो हमारे पास क्या करेगा? Variable path difference create करेगा between the two waves. Observation telescope. An observation telescope is used to view the interference pattern created by the recombination of the two beams. It is typically located at 45 degrees angle to both the reflected and transmitted beams. जो observation telescope होगा वहां पे हम क्या करेंगे? जो हमारे interference का pattern होगा वहां पे हम उसको observe करेंगे. Now जो हमारे पास वर्किंग है वो क्या है? द ऑपरेशन ऑफ मिकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. अ मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स सच एज अ लेजर इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इंटरफेरोमीटर. द इनकमिंग लाइट इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स बाय बीम स्प्लिटर. जो हमारे पास इनकमिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी अपन उसको दो हिस्सों में बांट देंगे बाय बीम स्प्लिटर, और ईच बीम ट्रेवल्स टू अ मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स बैक. और जो दोनों बीम्स है वो मिरर के ऊपर ट्रेवल करेंगे और वहां से जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, और जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम्स रिकम्बाइन होंगी एट द बीम स्प्लिटर दे इंटरफेयर विद ईच अदर. बीम स्प्लिटर में जब वो दोबारा रिकम्बाइन होगी तो क्या होगा? वहां पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व होगा थ्रू द ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप. By adjusting one of the mirror or the path length compensator, the optical path length of one of the arm is changed. This result in the change in path difference between the two beams. और हम जो है वो path difference between the two beams उसको भी change कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे?
या तो हम वन ऑफ द मिरर जो हमारे पास अवेलेबल है उसको एडजस्ट कर लें, या फिर पाथ लेंथ कंपनसेटर को जो है वो इस तरह से एडजस्ट करेंगे जो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ लेंथ है ऑफ 1 आर उसको हम चेंज कर लें। As the path difference changes, the interference pattern also changes. जैसे जैसे हमारे पास पाथ डिफरेंस चेंज होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न भी चेंज होगा, और जब हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो correspond करेगा to a whole number of wavelength you observe white fringes. When it corresponds to half wavelength differences, destructive interference, dark fringes are seen. जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस, और जब हमारे पास पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ होगा तो हमारे पास क्या होगा, destructive interference and dark fringes. Now determination of wavelength. To determine the wavelength of light using Michelson interferometer, you can follow these steps. Set up the interferometer with monochromatic light source and path length compensator at a known position. हमने क्या करना है, जो monochromatic light source है और path length को दोनों को at known position place कर देना है. Observe the interference pattern and count the number of bright or dark fringes that move across the field of view as you adjust the path length compensator. फिर हमने क्या करना है, जो interference pattern है उसको observe करना है और जो number of bright और dark fringes आ रही हैं उनको काउंट डाउन करना है, और जैसे जैसे हम जो है वो पाथ लेंथ कंपनसेटर को एडजस्ट करेंगे। और फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास पाथ लेंथ में चेंज आ रहा है उसको जो है वो मेजर करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिटरमिन कर लेना है बाय फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी डिवाइड लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे हमारे पास क्या एन है जी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और जो हमारे पास जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम एक्यूरेटली डिटरमिन कर लेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट को। Now question number 9. What is meant by plane polarized light? How does this phenomena decide that light waves are transfers in nature? हमने plane polarized light का बताना है और हमने बताना है कि कैसे जो हम ये डिटरमिन कर लेंगे कि हमारे पास लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसफर्स हैं इन नेचर। Plane polarized light. Plane polarized light, also known as linearly polarized light, is a type of light in which the oscillations of the electric field vector and consequently the magnetic field vector occurs in a single plane as the light wave propagates through space. प्लेन पोलराइज लाइट का दूसरा नाम है लीनियरली पोलराइज लाइट, और ये टाइप ऑफ लाइट है जहां में हमारे पास ऑसिलेशन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की, जो कि सिंगल प्लेन के अंदर ऑसिलेशंस होंगी, और जो हमारे पास लाइट वेव है वो प्रोपेगेट करेगी थ्रू स्पेस। The phenomena of plane polarization of light can be used as evidence that light waves are transfers in nature. जो हमारे पास फिनोमेना है प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, वो यूज होगा एज एन एविडेंस कि हम ये प्रूव कर सकें जो लाइट वेव है वो क्या है, ट्रांसफर्स है इन नेचर। Transverse waves are those in which the oscillations occur perpendicular to the direction of the wave propagation. Transverse waves क्या होती हैं, जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल की propagation perpendicular हो to the direction of propagation, और in the case of plane polarized light, the electric field vectors In the case of plane polarized light, the electric field vector oscillate in specific plane. जो प्लेन पोलराइज लाइट का केस है वहां पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या होंगे, ऑसिलेट करेंगे इन ए स्पेसिफिक प्लेन, और जो हमारे पास ऑसिलेशन होगी वो क्या होगी, एट राइट एंगल होगी। किस चीज के राइट एंगल होगी, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपगेट या ट्रेवल कर रही होगी। The transverse nature of light waves is confirmed through various experimental observations, including the creation of polarized light and the behavior of light when it interacts with polarizing materials such as polarizing filters. अच्छा, जो ट्रांसफर्स नेचर है लाइट वेव्स का वो कंफर्म होगा थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमारे पास क्रिएशन ऑफ पोलराइज लाइट और जो बिहेवियर ऑफ लाइट है जब वो इंटरेक्ट करेगी विद पोलराइजिंग मटेरियल सच एज पोलराइजिंग फिल्टर, तो हमारे पास क्या है, अच्छा, जो ट्रांसफर्स नेचर है लाइट वेव्स का वो कंफर्म्ड होगा थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमारे पास शामिल है क्रिएशन ऑफ पोलराइज लाइट, या फिर हम जो है बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद पोलराइजिंग मटेरियल सच एज पोलराइजिंग फिल्टर। इनसे जो हम ये ट्रांसफर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स को कंफर्म कर सकते हैं। When unpolarized
light passes through a polarizing filter it become plain polarized light, और जब हम unpolarized light को पास करेंगे through पोलराइजिंग फिल्टर तो हमारे पास क्या होगा, लाइट जो है वो पोलराइज हो जाएगी। और फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ये होगी कि जो लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है एट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। दिस बिहेवियर अलाइंस विद द वेव मॉडल ऑफ लाइट, और ये जो बिहेवियर है ये अलाइन होगा विद द वेव मॉडल ऑफ लाइट, जो कि हमें सजेस्ट करेगा कि जो लाइट है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये हमें हेल्प करेगा कि हम जो है इस्टेब्लिश कर सकें ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट वेव्स। ओके, आई होप यू विल एंजॉय इट, ऑल्दो ये बोरिंग है और सारा जो है ये थियोरेटिकल है, ये मुझे भी बोरिंग लगता है चैप्टर, तो आई होप जैसा भी है आपने इसे एंजॉय किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस टू द फ्रेंड्स एंड press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we upload in future. And till next video, take care, Allah Hafiz.